Hi, welcome back to my channel. This is my second video. मुझे नहीं पता मैं कब तक ये काउंट करने वाली हूँ, but I'm just very excited. If you have not seen my first video, I'll link it down. You should probably see it. I'm Kashish. Just that bipolar angry yapping biatch. Yes, so that's my channel name. It is spelled as Babe, the short form for bipolar angry yapping biatch. Biatch is a Mean Girls reference. If you don't know, why don't you know? It's like a mispronunciation of a word which is spelled as B-I-T-C-H. I thought मैं कभी किसी Q&A में इसको decode करूँगी, but मुझे नहीं लगता इसको decode करने की कोई ज़रूरत है. But today we're gonna talk about something. Like, can you look at my shirt? Distraction. So today we're gonna talk about fake feminism. Why are we talking about it, and what is fake feminism? Why am I talking about it? Am I a guru on it? Yes, maybe. At this point I feel fake feminism is happening all around us, and it is very important to identify it. So this video is gonna be a 101 guide on how to identify fake feminism around you. There is this series which is very controversial, very famous. It's called Chiraiya. It was on Jio Hotstar and I saw it like बहुत time पहले, और I really liked it. और मुझे लगता है अभी तक तो सबको उसके बारे में पता है because it's very popular, very controversial, and because of the content, because of the topic which is marital rape. इतने साल से बहुत कम ऐसे sensitive topics पे बात हुई है. At least we took an initiative. At least कहीं से तो start हुआ about talking this topic, जिसके ऊपर this is very shameful, जिसके खिलाफ हमारी कंट्री में, हमारी beloved कंट्री में एक law तक नहीं है. We're gonna make it the third biggest economy of the world. India is gonna be the second biggest economy of the world. Make it the first. I am very angry with you right now. तो क्या कर रहे हो उसका? When you cannot protect a woman inside her own home, जहाँ पे उसको खुद safe feel नहीं हो रहा है, and we are fighting over religions every day, but deep down in every religion, every woman is facing some sort of domestic violence or harassment every day on so many different levels. But the government is not gonna do anything about it. में जो संजय मिश्रा जी का कैरेक्टर होता है, which is the बाऊजी of the house, you know, तो उनके पास देखा जाए, जैसे सीरीज की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं, उनके पास इतने सारे अवार्ड्स हैं. ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, ही इज़ वेरी लिटरेट, राइट. बहुत लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है. एंड वो दिखाते हैं कि उनको कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अबाउट वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन. एंड जो उनकी बड़ी बहू है कमलेश का कैरेक्टर जो प्ले करते हैं, उनको वो कैसे घर पर ही पढ़ाते हैं. तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी. ओ माई गॉड, ही इज़ सो लिटरेट एंड ऑल. एवरी वुमेन इन हिज हाउस इज़ अंडर द घूंघट. They are doing the home chores. कोई भी jobs not allowed. If there is some problem in your house, उसको चार दीवारी में solve कर लो, क्योंकि खानदान की इज्जत की बात है, right? So ये है एक बड़ा एग्जाम्पल ऑफ फेक फेमिनिज्म. इसको हम कितना ज़्यादा बार अपने आसपास भी देखते हैं. यू नो, पीपल हु ट्राई टू बी, ओ आई एम वेरी मॉडर्न, ओ माई गॉड हम बहुत लिटरेट है, बहुत लिबरल है. डीप डाउन दे आर द बिगेस्ट मिसोजिनिस्ट पीपल. वो पुरानी टॉक्सिक सोच है, यू नो, जो संजय मिश्रा का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे अनकवर होना शुरू हो जाता है. वो that is a big part of fake feminism. When marital rape happened in that house, it was like, नहीं, ये तो husband wife के बीच की बात है. You know, you don't talk about it. Just shut up. You don't talk about it. क्योंकि अगर सबने सुन लिया तो इज्जत खराब हो जाएगी. और हम उसमें भी क्या करें जब हमारी कंट्री में एक इसको एज अ क्राइम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. कोई लॉ ही नहीं है इसके ऊपर, यू नो. और अगर आज भी लॉ आ जाता है तो भी कम से कम 10-20 साल लगेंगे टू फॉर वुमेन कि वो जाके रिपोर्ट करेगी. मिसोजिनी इतना हमारे रूट्स में इतना डीप डाउन इन्होंने बैठ गई है हमारे दिमाग में वो सोच कि ये करने से तो इज्जत खराब होती है. और सम वुमेन जो कि विक्टिम नहीं है, बट वो इन लॉज का जो कि फॉर वुमेन सेफ्टी है, उनका गलत यूज करके वो बच जाती है या फिर वो उसका फ़ायदा उठाती है. लेकिन जो एक्चुअली डीप डाउन औरतें घर में रोज़ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, वो घर की इज्जत बचाने के लिए कभी भी जाके ऐसे केसेस को रिपोर्ट नहीं करेंगे. इससे पता चलता है कि हम कितना पीछे हैं एज अ कंट्री की डेवलपमेंट.
जिसको हम आगे दिखाते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है हमारी कंट्री। पिंजरा है, पिंजरे में बंद कर दिया है आपको, बस आपका पिंजरा बड़ा कर दिया है ताकि आपको दिखे ना, आप डिल्यूजन में रहो कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही लिबरल है, ये तो मेरे को जॉब करने दे रहे हैं, मुझे पढ़ने दे रहे हैं, बट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, आपका पिंजरा बस बड़ा कर दिया है, बट आप स्टिल अभी भी कैद हो उन पुरानी घिसी पिटी जो कल्चर के नाम पे, संस्कार के नाम पर जो हमारे ऊपर गलत चीजें थोपी जाती। कल्चर की आड़ में दे अबैंडन वुमेन राइट्स, दे डू द रॉन्ग थिंग्स संस्कार के नाम पे, जबकि उनको ABCD कुछ नहीं पता है इस संस्कार का, उनको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हमारा कल्चर है। वो सिर्फ ये अपनी घिसी पिटी बातें, ये कल्चर तब यूज करते हैं, उसके पीछे तब छुपते हैं जब ये उनको बेनिफिट कर रहा होता है। लाइक ठीक है, स्कूल जाओ, एजुकेशन पूरी करो, बट जॉब मत करो, जॉब करो पर हमारी सिटी में करो, कहीं बाहर जाके मत करो, बाहर जाके मत पढ़ो, ठीक है, पढ़ो लिखो जॉब करो, शादी हमारी मर्जी से करो। क्यों करते लोग फेक फेमिनिज्म, क्यों करते लोग? बहुत ही आसान से एग्जांपल है, आपकी क्लास का, आपके स्कूल का पहला दिन है, आप किसी को नहीं जानते, आप एक दूसरे स्कूल से शिफ्ट करके एक नए स्कूल में आए हो और वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे हैं, वो दोस्त हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं आपस में, आप क्या करते हो? आप उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हो। वाई? क्योंकि आपको उनमें मिंगल अप होना है, ठीक है। अगर वो कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, अरे ये टीचर ने तो अच्छे से नहीं पढ़ाया, अगर आपको समझ भी आया होगा उन टीचर का, उससे हाँ नहीं पढ़ाया, तो मिंगल अप इन द क्राउड, ये लोग क्या करते हैं हमारे बीच में रहने के लिए। और ये जो फेक फेमिनिज्म है ना, ये मिसोजिनी, पेट्रियार्की, इन सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एटलीस्ट उसमें आपको पता तो है कि सामने वाला इंसान और आपके ख्यालात मैच नहीं करते हैं, आपको ये आइडिया तो है, एटलीस्ट वो उसके बारे में ओपन अप तो है। पॉप कल्चर इंडस्ट्री में हमारे मिलता है, जैसे कि बॉलीवुड में भी, इवन हॉलीवुड में भी, बहुत साल पहले तक जब मूवीज बनती थी, 50-60 साल पहले 90s में, विमेन जो फीमेल कैरेक्टर्स होती थी उनको सिर्फ ग्लैमर के लिए यूज किया जाता था। ऑडियंस सिर्फ हीरो को देखने जाती थी थिएटर में, और उन्हीं को ज्यादा पे चेक्स मिलते थे। और उस टाइम की वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की सोच भी सही थी, क्योंकि वही लोग ज्यादा क्राउड फिल कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस भी सिर्फ हीरो को ही देखने आ रही है थिएटर में, हीरोइन को नहीं। वो तो जस्ट साइड कैरेक्टर है, वो तो जस्ट ग्लैमर के लिए ऐड की गई है, हमें सिर्फ हीरो और विलन की फाइट देखनी है, दैट्स इट। तो वो पे चेक्स में भी वहाँ पे डिफरेंस दिखता था। बट नाउ विद फेमिनिज्म बाय आवर साइड, हमने आज के टाइम पे इन बॉलीवुड एज वेल कितनी सारी फीमेल लेड फिल्म्स बनना स्टार्ट हुआ है। लाइक मर्दानी, I love the entire मर्दानी series, and like we get गंगूबाई काठियावाड़ी, recent one, जिगरा, बहुत सारी फीमेल लेड फिल्म्स बनना स्टार्ट हुआ है और लोग उनको जाके देख रहे हैं, they are enjoying it। and as a female जब मैं ऐसी फिल्में देखती हूँ, मुझको बहुत रिलेटेबल फील होता है जब एक औरत के डेली स्ट्रगल्स दिखाए जाते हैं, उसकी सोसाइटी में जो बंधनों को तोड़ के वो आगे बढ़ती है और कैसे वो नेविगेट करती है विद ऑल द प्रॉब्लम्स, द रॉ साइड। वी एंजॉय इट, वी विमेन एंजॉय इट। तो अभी ये आना शुरू हुआ है। एंड अगर हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ देखें तो वहाँ तो देर आर सो मैनी फीमेल स्टार्स, लाइक वी हैव प्रियंका चोपड़ा, वी हैव मार्गो रॉबी, एंड वी हैव लाइक एमा स्टोन, एमा वॉटसन, एंड सो मैनी जिनकी पे चेक्स आर मोर देन द मेल को स्टार्स। तो वो धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। इसका सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो हम हर बार मिस कर देते हैं देखना। काफ़ी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स वो सिर्फ इसीलिए फीमेल लेड फिल्म्स बनाते हैं क्योंकि दे आर इन द ट्रेंड, क्योंकि उनको ट्रेंड्स के साथ जाना है, क्योंकि डीप डाउन उनको भी ऐसा लगता है कि एक फीमेल कैरेक्टर इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ अ फिल्म। हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, हाउ टू आइडेंटिफाई इट। और अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि हमने करना सीख लिया है, जो कि हमको पता है, मे बी आपको पता है, आपको रियलाइजेशन है ये कि आपके शायद इमीडिएट फैमिली में या आपकी थोड़ी एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये मुखौटा पहन के रखते हैं दैट वी आर मॉडर्न एंड लिबरल, बट डीप डाउन उनकी सोच वही पुरानी 90s में अटकी हुई है। और मुझे सोच से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इस सोच से जुड़े हुए उन ख्यालों के साथ जिससे वो ये अपना हक समझते हैं किसी औरत के साथ गलत करने का या उसको इल ट्रीट करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, point out things, first of all identify, point out things, aware the women around you। आपकी फैमिली में, मे बी आप ये वीडियो देख रहे हो, you might be a Gen Z और like a millennial, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही है, मे बी आपके आसपास की औरतों को नहीं समझ आ रही है ये चीज़ें, क्योंकि मिसोजिनी इस तरीके से हमारे दिमाग में घुसा दी गई है कि आप नहीं समझ पाते कई बार, और काफ़ी औरतों को नहीं समझ आता जो कि विक्टिम है ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो अवेयर दोज वुमेन, मेक देम फाइट फॉर देयर राइट्स। आई नो दिस इज़ वेरी टफ, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट
we need to do something. Be rebel, move out. If you feel that आपकी फैमिली में ही if someone is like that, आपकी immediate family में, then try to move out. Try to move out. Be the rebel. Okay, don't be the good girl. क्योंकि good girls don't make history. Think about you, be selfish, be aware, and do things that are for your own good. Lastly, I am just so glad about the Gen Z जनरेशन. लोग बहुत भला बुरा बोलते हैं हम लोगों को कि हमको तो सिर्फ इंटरनेट एंड वीडियो रिकॉर्डिंग रील्स बनाना आता है, बट उनको ये नहीं पता कि हम कितने ज़्यादा इमोशनली अवेयर हैं, हमको कितना ज़्यादा पता है, हम कंफ्यूज नहीं हैं, हमको पता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे क्या राइट्स हैं, हम उनको वायलेट नहीं होने देना चाहते हैं. वी आर नॉट लेजी, वी आर अवेयर. हमको पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, और अब और गलत चीज़ें नहीं होने देंगे. जैसे हमारी जो पुरानी जनरेशन्स है जिनको मिसोजिनिस्ट मेन इनोसेंट मदर्स कह के इनोसेंट मदर्स कह के बोलते दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ गुड गर्ल्स, ऑफ इनोसेंट मदर्स. अगली वाली तो हाँ, क्योंकि अगली वाली हम हैं, हम अवेयर हैं अपने राइट्स के, हमको पता है क्या गलत है, क्या सही है. हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले, तुम्हारी हरासमेंट, मेंटल टॉर्चर को और नहीं सहने वाले, राइट. आई जस्ट वांट टू से आई एम जस्ट सो ग्लैड to be born in this generation. I am so grateful that I am born in this generation. And I'm so proud of all the Gen Zs out there जो कि अपने rights के लिए daily किसी ना किसी level पे fight करते हैं. फिर चाहे वो office में extra working hours को लेके हो, workplace में या फिर schools में किसी teacher के misbehave करने पर हो. Stay alert you misogynist patriarchy people, क्योंकि we are not gonna tolerate it. Okay, we're gonna make our way, and now you stay alert. So at last I want to end this video while reciting a poem जो कि मैंने लिखी थी काफ़ी टाइम पहले, but yeah, okay, here it is. It's called it's little dramatic. Okay, so yeah, it's called मैं जिद्दी हूँ, and it's written on someday between Jan 2025 to April 2025. I've watched a series called Ziddi Girls. It's very nice. Please watch it. It's so good. मैं घर की चौखट से बाहर निकलने से डरती हूँ. बाहर किसका सामना करना पड़े ये सोच सोच के घबराती हूँ. वो गंदी निगाहें, समाज के बुज़दिल लोगों के ताने सुनकर थोड़ा सहम जाती हूँ. मगर फिर भी मैं बाहर निकलती हूँ. मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि मैं जिद्दी हूँ. ये रोज रोज की लड़ाइयाँ, दंगे फसाद, बदनामियाँ, अपने अस्तित्व की परवाह करती हूँ. अपने हक के लिए झगड़ना चाहती हूँ, पर इज्जत बचाने के लिए दायरों में रहने को मजबूर हूँ. मगर फिर भी मैं ये सारे बंधन तोड़ देती हूँ. फिर भी लड़ती रहती हूँ क्योंकि मैं जिद्दी हूँ. कुछ भी गलत होता हुआ देख लड़े बिन रह नहीं पाती हूँ. जिद्दी होना बुरा है ऐसा ही सबसे सुनती हूँ, लेकिन क्या बुरा है क्या सही ये समझती मैं बखूबी हूँ. कैद कर लो चाहे मुझे अब इन मर्यादा की बेड़ियों में, ये बेड़ियां नहीं समाज के दुष्ट भेड़ियों की चाल. मेरी आवाज दबाने की एक नाकाम कोशिश है तुम्हारी, क्योंकि इनको तोड़ना मैं अब जानती हूँ. आज एक है कल 1 लाख होगी, ये बेड़ियां उन्हें ना जकड़ पाएगी. ये बेड़ियां उन्हें ना रोक पाएगी जो लड़ेगी मरते दम तक अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अब ना ये बगावत कभी शांत होगी. हाँ हम है जिद्दी लड़कियां जो अब कभी ना किसी की गुलाम होगी. जिएगी जिंदगी अपनी शर्तों पे, अब हर जिद्दी आबाद होगी. ये आंधी ना रुकने वाली है अब, क्योंकि थामी है माँ दुर्गा ने कलाम खुद ही. हाँ हम सब है दुर्गा, हम सब है काली, हम सब है जिद्दी, क्योंकि अब अभिव्यक्ति के खतरों की हमने ली है जिम्मेदारी. अपने सपनों से हमने की है वफादारी. So yeah, that was a poem. और मुझको ये लिखते हुए काफ़ी strong feel हुआ था. जब भी I read it, I feel very strong. So tell me how you like it, and tell me if you like this video. And you know, you all are baddies, you all are babes. If you are a guy, if you are a girl, it doesn't matter. Everyone can be a babe. You can be a babe. There can be new definition to the word babe. For me, it's bipolar, angry, yapping biatch, because I feel ये 4 elements ना हर इंसान में कहीं ना कहीं हो जाते हैं. At some point you can be very bipolar, and some point you can be very angry. You can be yapping all the time, and yes, we all are a little bitch. So yeah, I mean, you can have your definition for the word. You can create
your world around you. You can do whatever you want because you are badass. You are great just as you are, and you are a babe.